Hi guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new here, my name is Astha. I make videos about skincare, hair, health, lifestyle, etc. and sometimes about travel also. If you don't know, I have a page on Instagram as well. The name of @lifecare by Astha. If you don't know, then please go over there and watch the videos over there as well. I make a lot of content on a regular basis there. तो मैंने अपने Instagram page के ऊपर एक poll करा था to know if you all are interested about knowing skincare for tweens, that is kids who are in the age of 10 to 13 years, who are pre-teens actually, and a lot of mommies said yes. I know there is so much of information out there, इतना information overload है, and the kids are so much more aware about the skin and the skincare that is around us, and they're also very much attracted कि मुझे भी ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है, मुझे भी वो यूज करना है, मुझे मम्मा जो यूज करते हैं वो यूज करना है. I know it gets a lot overwhelming for the kids also and for the mommies also कि बच्चों को कैसे समझाए कि क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है. So I thought I'll make a video on that one as well. So just keep on watching to know what kids should be doing and what they should not be doing as well. Skincare is about doing and also something that you should not do. कुछ करने वाली चीजें होती हैं, कुछ ना करने वाली चीजें होती हैं. I think दोनों ही जानना बहुत जरूरी है for the kids. They are too young, their skin is very immature. Skin उनकी बहुत जल्दी शेड होती है और नई स्किन बहुत जल्दी आती है, and that is why there are lot of actives that they should not be using at all. वो जरूरत ही नहीं है उनको यूज करने के लिए. तो प्लीज अपने बच्चों को भी ये वाली वीडियो दिखाना so that they understand that there are certain things that they should be doing for their skin, there are certain products that they should be using for their skin, and then there are a whole lot of things that they should not be doing at all. उनको वो सब करने की जरूरत ही नहीं है. They are too young for that. They should not be worried about getting aged. अभी वो बहुत young है. Aging is not anywhere near them, and they should not be jealous of their mummies using the skincare products because we are aging faster than what they are. They are just growing into these beautiful beings and they're coming onto their own. They don't have to get that feeling of a FOMO. उनको जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए. So in this video, I will cover what they should be doing for their skincare and what they should be avoiding as well. So just keep on watching and make sure कि ये बच्चों को भी दिखा देना. Okay, so let's start with why the kids get those acne and congested feeling when they are in this preteens age. It's because कि as their hormones are increasing, the sebaceous glands that produces the sebum, जो हमारा स्किन का नेचुरल ऑयल होता है, वो भी एक्सपैंड होता है और वो ज्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रहा होता है उस टाइम पे. अगर उस ऑयल ने, उस सीबम ने आपका पोर क्लॉग कर दिया और उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ गई, तो दैट वी एड्रेस एज अ व्हाइट हेड. बट इफ दैट पोर इज ओपन एंड द सीबम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, देन वी रेफर टू इट एज अ ब्लैक हेड. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस blackhead and whitehead are also a form of acne. वो non-inflammatory form of acne होता है. These are likely to happen from 10 years and onwards. कुछ बच्चे puberty जल्दी hit कर लेते हैं तो उनको जल्दी शुरू हो जाता है ये सारी problems, and we have to be very much aware कि उसको हम जल्दी से एड्रेस कर दें, ठीक कर दें. अदरवाइज उनको लेटर ईयर्स, जो उनके लेटर टीनेज ईयर्स हैं, तब उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो इट इज बेटर इफ यू कंट्रोल इट इन द अर्ली स्टेजेस, जब उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं. अगर आपके बच्चे को प्यूबर्टी जल्दी हिट हो गई है, देन यू हैव टू एड्रेस दोस इश्यूज देयर एंड देन ओनली. Okay, now starting with the routine. In the morning you have to wash your face, and I recommend using micellar gel wash from Simple, and I'm trying to recommend all the products that are easily available in India, at least on Nykaa or some other platform अगर मुझे नहीं मिला Nykaa पे. अब मैंने micellar gel wash इसलिए बोला Simple का because it is very hydrating and it is soap free. बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखो. ऑयली स्किन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल ड्राई कर दो. अगर आप उसको बिल्कुल ड्राई कर दोगे, देन आपके सिबेशियस ग्लैंड्स को ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि स्किन बहुत ड्राई है, तो और ऑयल प्रोड्यूस करो. तो जितना ऑयल आप ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे थे, आपकी स्किन उससे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी. फिर आप उसको और ड्राई करोगे, फिर वो ऑयल प्रोड्यूस करेगी, एंड देन यू विल गेट स्टक इन अ विशियस साइकिल. तो दैट इज वाई वी हैव टू रेगुलेट द ऑयल प्रोडक्शन. वी डोंट हैव टू स्टॉप द ऑयल प्रोडक्शन. और ये वाला फेस वॉश इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज सोप फ्री, इट इज वेरी जेंटल, and kids can use it. Even any people who has oily acne prone skin can use it, but it is specifically very much safe for the kids to use. Okay, for the moisturizer, I recommend going for the CeraVe moisturizer, which is moisturizing cream bomb hydrant. Now you will feel that ये तो ड्राई स्किन के लिए है, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन कैसे यूज कर सकता है. नो, इट इज एक्चुअली गुड फॉर दी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कॉमेडोजेनिक हो. इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्चुअली आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए, उसको आपकी इन्फ्लेम्ड स्किन को सूट डाउन करने के लिए चाहिए. दोज आर गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि प्लीज डोंट गो बाय द लेबल्स, डोंट गो बाय द मार्केटिंग. समटाइम्स क्योंकि इसका ना कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक है, मे बी बिकॉज दैट्स व्हाई दे हैव रिटन फॉर वेरी ड्राई स्किन.
but it is good for oily acne prone skin also because of the ingredients. I always go and recommend the products on the basis of the ingredients and not because of what they say on the packaging. Try this one and let me know how does this works for you. Okay, the third and the last product that you need for your morning skincare is a sunscreen. I always prefer physical sunscreen for kids क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन या जिसको हम मिनरल सनस्क्रीन कहते हैं या फिर जो बेसिकली जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ फॉर्मुलेट की जाती है, जो एक फिजिकल इनऑर्गेनिक फिल्टर्स हैं, बेसिकली वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते. इट इज लाइक अ मास्क, वो सिर्फ आपके ऊपर स्किन पे रहते हैं. इट एक्ट्स एज अ फिल्टर और यूवी रेज अंदर तक नहीं जाती हैं. इट इज बेटर बिकॉज दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द हार्मोन्स और दे डू नॉट एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर नॉट इंटरफेयरिंग विद एनीथिंग ऑफ योर बॉडी. केमिकल सनस्क्रीन यूज मत करना जिसमें ऑक्टोक्राइलिन, बेंजोफिनन 3 और वो बहुत सारे केमिकल फिल्टर्स हैं. वो वाले सारे केमिकल सनस्क्रीन का पार्ट है, चाहे वो हाइब्रिड भी हो, तो वो हमें नहीं यूज करनी है. प्रेफर यूजिंग फिजिकल सनस्क्रीन. जिंक ऑक्साइड बेसिकली एक चॉक की तरह होता है. जितना भी कोशिश करोगे ना उसके साथ फॉर्मुलेट करना बहुत मुश्किल है. हैट्स ऑफ टू कंपनीज जो उसके साथ रिस्क लेती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं हमारी नीड्स के हिसाब से. अब अगर मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट बोलूं तो वो बनेगा कि SPF 50 हो, PA 4+ भी हो और जेल लाइक टेक्सचर में हो, ऑयल फ्री हो और 100% मिनरल सनस्क्रीन हो. तो ये ढूंढना इतने सारे पैरामीटर्स में बहुत डिफिकल्ट था. तो फिर मैंने सर्च किया और मुझे एक सनस्क्रीन मिली. दिस इज ला शील्ड किड्स सनस्क्रीन SPF 50 विद PA 3+, 4+ नहीं है, 3+ है. मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है. मैंने जो इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, दिस seems to be a very good sunscreen and I have actually ordered it for my kids also. उसमें कोई पिक्चर नहीं थी, कुछ नहीं थी, so I don't know कि वो tinted है कि नहीं है. I'm going to try it for my kids and let you know as well. Hey guys, जो आपको बता रही थी कि सनस्क्रीन के बारे में, तो वो मैंने ऑर्डर करा था और वो अब आ चुका है मेल में. तो आई थॉट कि मैं उसको एडिट करके इस क्लिप को इस वीडियो में ही ऐड कर दूं. तो ये प्रोडक्ट आ गया है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है. इफ आई कैन शो यू हियर, सी बिल्कुल वाइट है क्योंकि जो इसका मेजर फिल्टर है वो जिंक ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड इज द सेकंड इंग्रेडिएंट इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट आफ्टर एक्वा. तो ये वाटर बेस्ड है. इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर द ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. बड़े भी यूज कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी है. थोड़ा टाइम लगेगा इसको ब्लेंड करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक बच्चों के लिए ना इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए व्हाइट कास्ट का, क्योंकि उससे पता भी लग जाएगा कि कहाँ पे सनस्क्रीन रह गई है. इसका ना एक्चुअली टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है. सी, तो ये ब्लेंड अच्छे से होती है. ऐसा कोई वाइट कास्ट भी ये छोड़ती नहीं है और बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाती है स्किन में और स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और सैटिन सॉफ्ट फिनिश देती है. सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू द इवनिंग रूटीन. डबल क्लेंजिंग जो हम लोग करते हैं वो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि उनका भी अपना सनस्क्रीन है मॉर्निंग का और उनका भी अपना स्वेट है मॉर्निंग का जो एक्यूमुलेट हो जाता है. उनका सीबम एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यूरिंग द इंटायर डे एंड दे हैव टू गेट रिड ऑफ इट. यूज फर्स्ट क्लेंजर द माइसेलर जेल वॉश फ्रॉम द सिंपल ओनली. एज अ सेकेंड क्लेंजर दे शुड यूज द सेरावी SA स्मूथिंग क्लेंजर. उसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, उसमें नियासिनामाइड भी है. सैलिसिलिक एसिड इज बेसिकली फैट सॉल्युबल, तो वो आपके डर्ट और पोर्स में अच्छे से घुल के उसको अच्छे से पोर्स आपके क्लीन आउट कर देता है. अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द किड्स क्योंकि एक तो ये वॉश के फॉर्म में है. इट इज नॉट गोइंग टू स्टे ऑन योर स्किन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट इज सेफ फॉर द किड्स टू यूज on an everyday basis. This SA cleanser has also ceramides in it and hyaluronic acid with it, जो आपकी स्किन को at the same time hydrated भी रखेगा. And also this is fragrance free, which is key to maintain a healthy skin barrier when you have an inflamed skin. Okay, now the time for the active. बच्चों के लिए इस टाइम पे I would only suggest to go for a 5% niacinamide serum क्योंकि वो रेगुलेट करेगा आपकी ऑयल प्रोडक्शन, सीबम प्रोडक्शन. एट द सेम टाइम आपकी स्किन बैरियर को भी सपोर्ट करेगा, उसको स्ट्रेंथन अप करेगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नियासिनामाइड 2 to 5% की रेंज में ही हो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना हो बिकॉज देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आउट देयर जो 10% नियासिनामाइड है. बेसिकली वो आपकी स्किन बैरियर को इवेंचुअली खराब कर सकता है, आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई कर सकता है. नियासिनामाइड हैज टू बी यूज्ड ओनली अप टू द लेवल ऑफ 5% इन कंजंक्शन. सारे प्रोडक्ट्स में टोटल मिला के यू कैन डिस्काउंट द फेस वॉश क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए फेस पे रहता है. सारे प्रोडक्ट्स मिला के अगर मॉइस्चराइजर में भी है, अगर आपके सिरम में भी है, टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली वो 5% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा नाइसिनामाइड भी स्किन को ड्राई कर देता है और स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बच्चों ने एक्टिव्स यूज करने ही हैं तो नियासिनामाइड इज वन ऑफ द सेफेस्ट जो सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल भी करेगा
और स्किन इरिटेशन भी कम देगा, ओनली इफ इट इज यूज्ड इन द करेक्ट परसेंटेज. And for the last step in the evening skincare routine for the moisturizer is the same. You can repeat from the morning the CeraVe Balm Hydrant, that moisturizing cream जो उसकी original fatty moisturizing cream है. बस मॉइस्चराइजर अपना मिस मत करना, क्योंकि आपको रेगुलेट करना है अपना सीबम प्रोडक्शन. आपको उसको बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करना. जितना आप ड्राई करोगे उतना ऑयल प्रोड्यूस होगा, और ये पूरा आपका ना साइकिल चलता रहेगा एंड योर स्किन बैरियर एंड योर स्किन हेल्थ विल जस्ट डिटेरिएट बाय ईच साइकिल. अब स्किन केयर रूटीन आपकी बन चुकी है. अब नाउ द पॉइंट्स दैट यू शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ. क्या चीजें आपको और चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इट इज टू अर्ली फॉर यू टू पुट ऑन एनी एक्टिव्स. आई नो कि बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है कि इतने सारी चीजें अवेलेबल हैं और इतनी सुंदर सुंदर पैकेजिंग में आता है कि हमें लगता है कि यार ये किड्स फ्रेंडली होगा, बट जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू यूज देम. जितना मैंने बताया दैट इज गुड इनफ फॉर यू फॉर नाउ, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी यंग है, इतनी जल्दी आपकी स्किन शेडिंग हो रही है और न्यू स्किन ऊपर आई जा रही है. यू डोंट नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ अदर एक्टिव्स to stay young. You are very young. Also you need to stay away from benzyl peroxide because skin बहुत ही sensitive होती है इस टाइम पे और बहुत ही young होती है, immature होती है. इतने हाई स्ट्रेंथ एक्टिव्स जरूरत नहीं है आपकी स्किन के लिए. सैलिसिलिक एसिड इज गुड इनफ फॉर यू एज ऑफ नाउ. अगर फिर भी आपको लगे कि मेरे को सैलिसिलिक एसिड से या जो मैंने आपको एक रूटीन बताई है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, then you definitely need to consult your dermatologist. Another thing that you should be very mindful of is not scrubbing your skin. Physical scrubs अपने फेस पे यूज नहीं करने. जो वो मिथ्स होते हैं, ग्लव्स की तरह होते हैं, हम उससे स्क्रबिंग करते हैं और डेड स्किन सारी निकल जाती है. प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि डेड स्किन सेल्स के साथ साथ लिविंग स्किन सेल्स भी शेड हो जाते हैं बिकॉज दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. और ऐसे स्क्रब करते कितना स्क्रब करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा. आपकी लिविंग सेल्स भी आप डिस्ट्रॉय कर दोगे. दैट कैन लीड टू माइक्रो टियरिंग और दैट कैन लीड टू अर्ली एजिंग एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू पिगमेंटेशन. तो इसलिए वो सब मत करो. फिजिकल स्क्रब बिल्कुल यूज नहीं करना. आई अंडरस्टैंड ऑयली स्किन वालों को लगता है कि मैं जितना उसको घिसूंगी या उसको स्क्रब करेंगे वो जितना ड्राई होगा मेरी स्किन उतनी अच्छी हो जाएगी, पर नहीं अच्छी होगी. मत करना, प्लीज मत करना. नाउ थर्ड पॉइंट, इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, जो आपको बिल्कुल प्ले करना चाहिए इस एज में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले स्पोर्ट्स. अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो उसके बाद स्वेटिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, आप ना अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अपने साथ लेके जाया करो. और जब आपका स्पोर्ट्स वगैरह खत्म हो जाता है, यू आर डन विद योर, उसके बाद प्लीज फेस वॉश कर लो. माइसेलर जेल वॉश के साथ फेस वॉश कर लो, अपना मॉइस्चराइजर लगा लो और अपना सनस्क्रीन उसके ऊपर रिपीट कर लो. जो स्वेट होता है जब वो बेसिकली अगर एक्यूमुलेट हो गया तो आपके जो पोर्स हैं उसको क्लॉग कर देगा और आपकी स्किन और ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. तो इट इज बेटर कि आप फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन स्पोर्ट्स के बाद अपना जरूर किया करो. एट दिस स्टेज अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग इनटू मेकअप. दे स्टार्ट प्लेइंग विद देयर मदर्स मेकअप एंड दे गेट इंटरेस्टेड इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेकअप दैट इज अवेलेबल. बट इतनी ज्यादा एज नहीं है. दिस इज माई पर्सनल फीलिंग दैट आई वुडंट वांट माई डॉटर to get into heavily invested into makeup at this early age. But चलो each their own. अगर आप मेकअप यूज कर ही रहे हो तो इट इज बेटर अगर आप लिक्विड फाउंडेशंस अवॉइड कर दो बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू क्लॉग योर पोर्स मच मोर देन द पाउडर वंस. पाउडर वाले यूज कर लो. और प्लीज अपना मेकअप मत शेयर करना किसी से भी. प्लीज अपने लिप बाम्स बिल्कुल मत शेयर करना किसी से बिकॉज द काइंड ऑफ वेदर वी आर लिविंग इन, इट इज अ पेट्री डिश फॉर बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई. बहुत जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है और हमारा इंडिया का मौसम उसको और ज्यादा बेनिफिट करता है. तो प्लीज डोंट शेयर your products with any other person, not even with your bestie. Let's come to the hair part. अगर आपने कोई हेयर बाम लगाया है, कोई जेल लगाया है, कोई ऑयल लगाया है तो प्लीज इतना हिस्सा अवॉइड कर देना और पीछे से लगाना क्योंकि यहाँ से ऑयल ड्रिप करेगा तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, एक्ने है, तो वो और ज्यादा इन्फ्लेम हो जाएगा. तो इट इज बेटर वट एवर हेयर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, प्लीज यूज इट फ्रॉम द बैक. फ्रंट वाला छोड़ दो. ठीक है. तो यार दिस वॉज इट. दीज वर ऑल द डूज एंड डोंट्स एंड ऑल द recommendations that I have for all my beautiful tweens out there. I hope mommies and tweens are happy with the kind of recommendation and the kind of work I have done for this video. अगर आपको पसंद आया मेरा काम then please hit the like button and also subscribe to my channel if you haven't already. और मेरा Instagram का हैंडल है @lifecare_by_Astha. प्लीज वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना. There are so many other valuable information that I give over there as well. I know मैं YouTube videos थोड़ी सी कम बनाती हूँ क्योंकि it takes a lot of time and effort. It takes a lot of time to film these videos और 2 बच्चों के साथ मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना YouTube वीडियो के लिए टाइम निकालना because I want to make good
recommendations videos for all of you, and I try to cover as many aspects as I can in just one video. और प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स डाउन में भी जरूर बताना कि ऐसी और कौन सी वीडियोस है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को और चाहिए. तो या दैट वाज इट. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. और मुझे बता देना आपने नीचे कौन सी और वीडियो देखनी है. टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय.